सुखद अपन शरीर दिला बता सुख संयम यात्रा निभव जोजी बता जोजी भात पानी નો લાભ દેજો ઈચ્છા કાર્ય સિદ્ધિ સ ભગવાન અભૂઠ્યોની અભિંતર રાજ્ય ખામે કદાચ મળે छानी खमासुनो लिव्य अंचे किसी एक मतलब का सुख सदा भगवान नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहनं एषो पंच नमोकारो सर्वपावकपणासनो मंगलानं च सर्वेषे परमं हवै मंगलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो तीर्थपति श्री वासुपूज्य स्वामी भगवान की जय। बोलो मन पुराना महाराजा सोमनाथ तीर्थपति अचिरानंदन श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो स्वामीपति गोदक पूज्यपाद आचार्य भगवान देवेंद्र श्री स्वर्णी महाराज साहेब की जय। बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान कलापूर्ण श्री स्वर्णी महाराज साहेब की जय। જેમનું પવિત્ર સાનિધ્ય મનપરાશ્રી સંઘને પ્રાપ્ત થયું છે તો આ પૂજ્ય મુનિનાથ શ્રી તીર્થ હેમવિજયજી મહારાજ સાહેબ કી આજે બીજો એવો અવસર આવ્યો છે કે પૂજ્ય સાધ્વીની ભગવંતના 31 ઉપવાસ આજે 31મો ઉપવાસ ગઈકાલે આમ જોવો તો 30 ઉપવાસનું માસિક શ્રવણ પરિપૂર્ણ થયું પણ આજે દિવસ કયો તો તિથિ કઈ હતી અને આજે 31મો ઉપવાસ થોડાક સમય પહેલા પૂજ્ય સાધ્વીની
પ્રિય ભક્તિ શ્રી મહારાજ સાહેબનું માસિક શ્રવણ પરિપૂર્ણ થયું અને આજે સાધ્વીની ભગવાન પ્રસન્ન કૃપા શ્રીજી મહારાજ સાહેબ એમનું માસિક શ્રવણ પરિપૂર્ણ થયું ને એના તપધર્મના ઉજવણા માટે તપધર્મની અનુમોદના કરવા માટે આપણે સૌ એકત્રિત થયા છે. કોઈ કવિએ બહુ સરસ મજાની 4 લાઈનો લખી છે. એનો ઉભવાઈના કેસ ચાલો આજે માસિક શ્રવણ 31 ઉપવાસની આરાધના કરે છે. આજે ખૂબ અંતરથી અનુમોદના કરો. એમના માટે મને ખબર છે કે અત્યારે 2 કલાક પણ ખુરશીમાં બેસવું અઘરું છે. આપણે બધા કદાચ પોતાને તપસ્યા હશે, કોઈ વર્તમાન તપની ઓળી કરતા હશે, કોઈ બીજો કોઈ તપ કરતા હશે, પણ 31 ઉપવાસ તો અહીંયા બેઠા કોઈને પણ નથી બની શકે. એટલે ખાસ અનુમોદના કરજો હૃદયથી કે ભગવાન આ મહામૃત્યુંજય તપ મૃત્યુને પણ જય કરનારનો એવો તપ આ શ્રમણી ભગવંતે આરાધ્યો. થોડાક દિવસો પહેલા આ જ મનફળાની ધરતી ઉપર સાધ્વીની ભગવંતે 30 ઉપવાસની આરાધના કરી. આવા બંને મજાના સંયોગો આ મનફળાને પ્રાપ્ત થયા છે. બાકી શ્રમણી ભગવંત એટલે પડદા પાછળનું જીનસા છે. આ દુનિયાને મહાન શ્રમણ ભગવંતો મળે ને તો એક શ્રમણી ભગવંતના કારણે, અને કનકસુરી દાદા મળે તો એક આનંદશ્રીની શ્રમણી ભગવંતના કારણે, હરિભદ્રસુરી મહારાજા મળે તો એક યાગીની મંત્રાચાર્ય શ્રમણી ભગવંતના કારણે, કેટલાય ગીતાર્થ સુરી ભગવંતો આજે વર્તમાન સમયના કેટલાય ગચ્છાધિપતિ ભગવંતો કોઈને કોઈ શ્રમણી ભગવંતના કારણે જીન શાસનને પ્રાપ્ત થયું. અને આ જીન શાસન આ શ્રમણી ભગવંત એટલે બીજું કઈ નથી, માનું કામ કરે. કોનું કામ કરે? માં દીકરાને જન્મ આપે, લાલન પાલન કરે, પોષણ કરે, મોટો કરે, બધું જ એ કરે. પણ દીકરાના નામની પાછળ નામ બધું જોડાય, દીકરાનું નામ. સાહેબ અહીંયા સુધી પહોંચેલા કેટલાય શ્રમણ ભગવંતો નાની ઉંમર હોય ને 5, 7, 10 વર્ષ સાધુ ભગવંતના ઉપવાસ રહી જતા ડરે, પણ એ સાધ્વીની ભગવંતોના ઉપવાસ રહી જાય, નાની 2-4 ગાથાઓ કરે, એમ ગાથા કરતા એમને એવા સંસ્કારોનું પ્રારંભિક સિંચન કરે, અને એ શ્રમણી ભગવંત આંગળી પકડીને સાધુ ભગવંતના ઉપવાસને લઈ જાય, અને ત્યાં પછી પોતાના જીવનની અંદર ચારિત્ર મૌન્ય કર્મો તોડીને જીત શાસનનો સર્વોચ્ચ પદ એટલે નવોલોએ સર્વ સામૂહિકના પદ સુધી પહોંચે. સાથે યુદ્ધ કરતું જાત સાથે ખાલી વાતોમાં શું રસ છે? યુદ્ધ કરતું જાત સાથે ખાલી વાતોમાં શું રસ છે? દુનિયા ન જીતાય તો કાઈ નહીં, ખાલી જાત જીતાય ને તો પણ બસ છે, જાત જીતાય ને તો પણ બસ છે. આજે જાતને જીતવા માટે આજે જે શ્રમણી ભગવંતે તપ ધર્મની આરાધના અને સાધના કરી છે, એમના ચરણોમાં નતમસ્તક વંદના કરીને આજના પ્રસંગનો શુભારંભ કરીએ. પ્રથમ સાધુ રૂપે પરમાત્માએ ગૌતમ સ્વામીને વિરાજિત કર્યા, તો પ્રથમ શ્રમણી રૂપે ચંદન બાળાજીને પરમાત્માએ વિરાજિત. ચતુર્વિધ શ્રી સંઘની અંદર સેકન્ડ નંબરનું સ્થાન કોઈનું હોય ને પરમાત્માના શાસનમાં, તો એ ખાલી શ્રમણી ભગવંતનું છે. અને આજે એ શ્રમણી ભગવંતની યશસ્વી પરંપરા. આમ જોઈએ તો આ શાસનના પહેલા શ્રમણી બનવાનું સૌભાગ્ય ચંદન બાળાને મળ્યું, તો આ અવસર પેઢી કાળના પ્રથમ શ્રમણી બનવાનું સૌભાગ્ય બ્રાહ્મીજીને પ્રાપ્ત થયું. એ બ્રાહ્મીજી પ્રભુ ઋષભદેવના પરમાત્માના શાસનકાળની અંદર પ્રથમ શ્રમણી બન્યા. આ અવસર પેઢી કાળના પ્રથમ શ્રમણી એ બ્રાહ્મીજી બન્યા, અને ત્યારથી લઈને સેંકડો શ્રમણી ભગવંતો, આમ જુઓ ને તો 44,86,406 શ્રમણી ભગવંતો, ટોટલ 24 તીર્થંકર પરમાત્માના શાસનકાળના શ્રમણી ભગવંતોનો પરિવાર છે. એનો એ ખૂબ કામ કર્યું છે, ચાહે શ્રમણી રૂપે હોય કે શ્રાવિકા રૂપે હોય. શાસનની આરાધના, સેવા, ભક્તિ, વાત્સલ્ય, પ્રેમ, મમતા, આ બધું જ લખલૂટ રીતે આ જગતને લૂંટાવનારું વ્યક્તિત્વ કોઈ હોય ને તો આ બહેનો છે. केवल भगवान के भरोसे उन्होंने घर बार परिवार छोड़ा है. आज उनके हृदय से आज उनकी अनुमोदना करना है. हृदय के भाव के साथ मैं विनती करूंगा एक छोटा सा. Oh
ऊपर तप नहीं किया, एक बार तालियों से बधाइए पुनीशाली। हाँ, आप इतने टेंशन में बैठे कि पूरे अदानी अंबानी पावर आप ही लेके बैठे हो ना सेफ, और उसके दाम घट गए और उनका जो चेहरा होता है ऐसे बैठे आप टेंशन में। जितनी प्रसन्नता से साध्वी जी भगवान बैठे इतनी प्रसन्नता से आप भी नहीं बैठे, सुबह से नाश्ता करने के बाद भी नहीं बैठे। हाँ, थोड़ा मुस्कुराओ। कभी जीवन में 28 से ऊपर पचखान नहीं, लेकिन ये घोड़ी जी पार्श्वनाथ दादा संकेश्वर दादा की क्या कृपा हुई, गुरुदेव की क्या कृपा हुई, और वही स्वप्न है। सच में बोलो, अपने को ऐसा स्वप्न आता है, अनुपमा को देखकर सोते कहाँ अच्छे स्वप्न आएंगे। हाँ, और एक स्वप्न आया कि इस बार मासिक श्रवण करना है, और उन्होंने स्वप्न भगवान को बताया। भगवान को बताने के बाद साध्वी जी भगवान प्रिय भक्ति श्री महाराज साहब को भी बताया। तो स्वप्न सुनने वाले ने भी सोच लिया कि नहीं, आप मासिक श्रवण करेंगे तो आपका साथ मैं भी दूंगी, और उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया। और आज सबको अभी चातुर्मास आषाढ़ सुद 14 से स्टार्ट होता है, तो आषाढ़ सुद 14 से चातुर्मास की शुरुआत हुई। अभी चातुर्मास का भी 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन साध्वी जी भगवान के एक बार दोनों हाथ उठा करके अनुमोदन करना है कि 31 उपवास पूरे आषाढ़ महीने में एक भी दाना मुख के अंदर साध्वी जी भगवान ने नहीं डाला। प्रवेश कब हुआ? साहिब जी का चातुर्मास प्रवेश कब हुआ? एक बात बताऊं, मनपरा की धरती पे आने के बाद एक भी निवाला उन्होंने अपने पेट में नहीं उतारा। कर दोनों हाथ उठा करके तनुबोधना कीजिए कि मनपरा की धरती पर आने के बाद एक भी बार एक भी अनाज का दाना उन्होंने अपने मुख में नहीं डाला। 12 साधु साध्वी जी भगवान इस मनपरा की धरती के एक बार दोनों हाथ उठा करके अनुमोदना कीजिए कि अपनी गांव के साध्वी जी भगवान के यहाँ पर चातुर्मास है। आज कौन कहता है कि आज समय खराब है? मैं तो कहता हूँ अब समय अच्छा है। आज छोटी छोटी उम्र में कितने लोग सुखी संपन्न परिवार के लोग, अभी गुरुदेव की निश्रा में बंबई में दीक्षा हुई, सुखी संपन्न परिवार के लोग आज घर बार परिवार को छोड़कर प्रभु शासन के सर्वमत्व को स्वीकार करते हैं। पहले तो एक सिद्ध चक्र पूजन महीने में होता था तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। आज जिन शासन में एक दिन ऐसा नहीं होगा कि शत्रुंजय की भाव यात्रा और सिद्ध चक्र पूजन नहीं होता, कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में देखने का। पहले तब छोटा सा होता ना तो भी कितनी चर्चाएं हो जाती है। पूरे सामूहिक, आज तक हमने सामूहिक मैरिज देखा है, लेकिन सामूहिक मासिक श्रवण, सामूहिक दीक्षा, ये सब ये 21वीं सदी में गुरुदेव की कृपा से हम सबको देखने का सौभाग्य होता है। ये अब अच्छा समय है। ये तो सही, पूरे घर बार परिवार को छोड़कर निकलने वाला क्या परिणाम मुझे पता है। राजपथ की दीक्षा का पहले 3 दिन मैं वहां रुका था, फिर चौथे के 5वें दिन में यहाँ पे राधनपुर के पास में गुरुदेव की निश्रा में बिहार भाग का ओपनिंग, और वहाँ भी 17 तारीख को मुझे पता है पक्का है, 17 फरवरी के दिन आपकी दीक्षा हुई है। बराबर? हाँ, 17 फरवरी आज भी याद है मुझे। और 16 फरवरी की रात को मैं बैठा था आचार्य भिक्षाधिपति अध्यात्मनिष्ठ कल्पतरु महाराज साहब के पास। विदाई का प्रसंग बस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। गुरुदेव तो वैसे ही संधारा कर रहे थे, और वहाँ के में गुरुदेव के पास जो मानस था ना, उसके मोबाइल पे रिंग बची चेन्नई से, और गुरुदेव आचार्य तीर्थवर्धन मिश्र जी महाराजा ने उस वक्त फोन करवाया। 13 दीक्षा फाइनल हुई थी कितनी, और जिन शासन में से ज्वलंत एग्जाम्पल है कि विदाई समारोह 13 का हो और दीक्षा 14 की हो, और उसके अंदर 14वीं दीक्षा देने वाला कोई था ना, तो उनका नंदन था। आज पूरे पूज्य तीर्थ भुवन विजय जी महाराजा करके बहुत ही अच्छा संयम जीवन। सुबह जब दीक्षा होती ना तो मैंने छोटे महाराज साहब को पूछा, तो सब एक यूनिफॉर्म में यूट्यूब पर देखा तो सब एक जैसे कपड़े में, ये महाराज साहब अलग है, क्योंकि ये महाराज साहब की दीक्षा रात को 12 बजे फाइनल हुई थी। बस ज्यादा कर लिया, और कल जिस साध्वी जी भगवान का 31 उपवास का पालना, एक बार हृदय के दोनों हाथ उठा करके तपस्वी की अनुमोदना करते हुए, क्या जिन शासन है, धन्य जिन शासन। एक बात बताओ, उनको प्राप्त करने के बाद जिस श्रमणी भगवंत ने तप किया है, आज अनुमोदना करेंगे कि केवल बस आए हैं 11:30-12 बजे वापस चले जाएंगे? अनुमोदना करने के लिए कितने लोग आए? आपने तो एक आधा घंटे की नींद भी ले ली। हाँ, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, राई प्रतिक्रमण करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर 10 बजे तो श्रम आ जाता है। हाँ,
देखो उठाओ उनको, हाँ अध्यात्म योगी, हाँ ऐसी तरह। तो आज हृदय से भाववाही पद के साथ साध्वी जी भगवान के धर्म की अनुमोदना करेंगे सब साधु मिलकर, सबको दोनों हाथ का उपयोग करते हुए। आज ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई मैं 50, 60, 70 साल की उम्र वाले के सामने प्रोग्राम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरे सामने जो भी बैठे यंगस्टर बैठे हैं, जो 15, 20, 25 साल की उम्र के लोग हैं, और आज हृदय के भावों के साथ मुझे साध्वी जी भगवान प्रसन्न कृपा श्री जी महाराज साहब के तब धर्म की अनुमोदना करने के लिए आए हैं। और आज ऐसे हृदय के भावना के साथ आज पहला मासिक श्रवण किया है। आज हमारा कछवागढ़ समुदाय कितना पावन है, पुण्यशाली। आज वर्तमान जिन शासन में 18 समुदाय के अंदर कोई भी वर्तमान तब की होली करते हैं ना, तो यही कछवागढ़ समुदाय के हंसकीर्ति श्री जी साध्वी जी भगवान को याद करते हैं, जिन्होंने आज करीबन 378 होली 77 की अभी दिशा में होनी चाहिए। हाँ हाँ 377 होली पूज्य साध्वी जी भगवान हंस कीर्ति श्री जी महाराज साहब ने की। आज पूरे चिंतासों में जो भी आम्बिल करता है तो उनके नाम की अनुमोदना करे बिना आम्बिल नहीं करता है। आज ये हमारा कछवागढ़ समुदाय का गौरव है, पुण्यशाली। आज हमको दुनिया का सबसे लेजेंडरी भक्ति योग की दुनिया के महान शहंशाह जिसको कहते हैं कला पुरुष सूरी महाराज हमको मिले हैं। हंस कीर्ति श्री जी जैसे प्राण साध्वी जी भगवंत हमको मिले हैं। कलिकाल के स्थूलपत्र समान कनक सूरी दादा हमको मिले हैं। आज हम कितने लकी हैं। और आज वही समुदाय, वही अनुशासन, वही परंपरा पूज्य आचार्य तीर्थपत्र सुरेश्वर जी महाराजा के असीम आशीर्वाद जिनके ऊपर ऐसे साध्वी जी भगवान के अनुमोदना के लिए दोनों हाथ मिला करके हृदय के भावों के साथ अनुमोदना करते हैं। आनंद
भगवान प्रभंजना जी महाराज है, जिन्होंने वर्तमान तक की 200 ओली की, 100+100, एक बार अनुमोदना कीजिए पुण्यशाली, 100+100 200 ओली पूज्य साध्वी जी भगवान प्रभंजना जी महाराज साहब। 100 ओली की आराधना करनी है ना, कंटिन्यू करें ना तो भी 14.5 साल लगते हैं, यानी 200 ओली करने में जीवन के 30 साल केवल और केवल अमृत तप की साधना के अंदर जिन्होंने व्यतीत कर दिए ऐसे। हाँ, और उनका 200 ओली का पारणा, क्या सौभाग्य लेकर आए इस मनपरा वाले कि 200 ओली का पारणा भी साध्वी जी भगवान प्रबंधना जी महाराज साहब का यही मनपरा की पुण्यवंत धरती पर हुआ। राधनपुर के वो वतनी थे, वसुबेन करके उनका सांसारिक नाम था, और साध्वी जी भगवान प्रबंधना जी साध्वी जी बनकर ये भी एक समुदाय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के ऐसे समुदाय के अंदर ऐसे ऐसे श्रमणी भगवंत, मैं बोलता हूँ ना, आचार्य भगवंतों का एक स्वाभाविक पुण्य होता है, मुनि भगवंत का भी एक पुण्य होता है। मैं तो बहुत बार अभी शहरों के अंदर परिस्थिति में तो देखता हूँ ना कि कभी आंखों में से आंसू बह जाए। कोई आचार्य भगवंत आते हैं तो हम बहुत ठाट माट के साथ सामैया करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन आज शहरों के अंदर मुझे पता नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, हमने कनकसूरी दादा ने ऐसा संस्कार दिया है। आज भी लोग कहते हैं, सुनिए पुण्यशाली, अभी धर्मसूरी के राजरत्नसूरी महाराज ये कच्छ के अंदर विहार करके गए, उसके पहले गुणरत्नसूरी महाराज के रश्मि रत्न महाराज साहब वो भी कच्छ के अंदर विहार करके गए। उनके महात्मा के शब्द है कि कच्छ के अंदर ये कलापुर सूरी दादा, कनकसूरी दादा ने क्या संस्कार दिए इन लोगों को। हम 20 थाना, 25 थाना, 30 थाना हो और गांव के अंदर केवल जैन के 2 कर्मी हो ना, तभी 30 थाना की भक्ति, ये कच्छ के गांव की बहनें, पता ही नहीं चले कि 30 साध्वी जी भगवान साधु भगवान की गोचरी की व्यवस्था ये कच्छ वाले लोग आराम से कर लेते हैं और इतनी भक्ति भाव से साध्वी जी भगवान पूर्ण गुणा श्री महाराज साहब 100+30 130 वर्तमान तक की ओली साहिब जी हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, पूज्य साध्वी जी भगवान पूर्ण ऐसा श्री महाराज साहब, हाँ ये बैठे हैं पहले 108 ओली कंटिन्यू, 108 के बाद वापस उन्होंने पाया डाला और उसके ऊपर 70 ओली 70 100 हमारी भाषा में बोलते 176 वर्तमान पद की ओली करने वाले साध्वी जी भगवान यहाँ पर बैठे करते हुए हाथ उठा करके हृदय के भाव के साथ अनुमोदन करते हुए भक्ति हो सके ना, इतनी भक्ति श्रमणी भगवंतों की करना है। मैं कह रहा था कि सिटी के अंदर कोई आचार्य भगवंत आता है, इनका शादी होता है, लेकिन बहुत सारे उपाश्रय में ना बोर्ड लगाया हुआ है कि साध्वी जी भगवंत को 3 दिन से ज्यादा ठहरना है। इतनी आंखों में से आंसू बह जाते हैं, कोई बीमार है, कोई किसी को तकलीफ है, और आज संघ भी क्या करता है पुलिस वाली, ये नहीं देखता है कि इतनी बड़ी होली करने वाले साध्वी जी भगवंत, इतने तपस्वी साध्वी जी भगवंत, उनका भी इंटरव्यू करते हैं कि ये साध्वी जी भगवान व्याख्यान क्या दे रहे हैं। हमको कोई उनकी आराधना से कोई लेना देना ही नहीं, सही में वो व्याख्यान दात्री हो तो ठीक है, उनका चातुर्मास के लिए हम बुला देंगे, लेकिन वो आराधक है, इतनी संयम निष्ठता जीवन है इनका, 50-50 60-60 70 साल तक का संयम जीवन की आराधना है, इतने बड़े बड़े, क्योंकि जिन शासन पुरुष प्रधान शासन, एक दिन के भी संयम साधु भगवान को साध्वी जी भगवान चाहे 50 साल की संयम यात्रा तब भी उनको वंदन करेंगे, क्योंकि जी महाराज है जिनका जीवन अभी पड़ा कैसा जीवन था। एक समय था हमारे जिन शासन में शादी ठाट-बाट से होती थी और दीक्षा लोग भाग कर लेते थे। आज समय चेंज हो गया, शादी के बोलने जैसा ही नहीं रहा और दीक्षा ठाट-बाट से होती है ना। अभी देखिए ना अपने बम्बई में नमन भैया की दीक्षा कैसे ठाट-बाट के साथ 5-10 हज़ार लोग से ज़्यादा लोग जितने वहाँ लाइव देख रहे थे, इससे ज़्यादा कई लोग तो मोबाइल और टीवी के माध्यम से दीक्षा प्रसंग को देख रहे थे। सबसे
છે, આત્મા સાથે જે કર્મો લાગે છે એ પણ બધા અનાદિના છે, આત્મા સાથે જે શરીર લાગ્યું એ પણ અનાદિનું છે, અને શરીર સાથે જે આપણો આહાર લેવાય છે એ આહાર પણ અનાદિ કાળથી આપણે લઈએ છીએ. એક પણ કાળ એવો નતો, એક પણ સમય એવો નતો, એક પણ ક્ષણ એવી નથી વિગ્રહ ગતિને જોડીને આ આત્માએ આહાર ન કર્યો હોય. એટલે આત્માને અનાદિકાળથી આ શરીર લાગ્યું છે અને શરીરના કારણે આહાર લેવો જ પડે છે. એટલે જ્ઞાની ભગવાન તો તમને એમ કહે છે કે તમારા અનંત ભાવ એવા નીકળ્યા કે જે અનંત ભાવમાં તમને પદ ન મળ્યું હોય, એ અનંત ભાવમાં તમને પ્રતિષ્ઠા ન મળી હોય, એ અનંત ભાવમાં તમારું ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય ન હોય, એ અનંત ભાવમાં તમને ઉત્કૃષ્ટ સામગ્રી ન મળી હોય, એવા અનંત ભાવો તમે કર્યા, પણ આહાર વિનાના, शरीर विना एक पण भाव कर्या. एक भी भाव आपने शरीर बिना ने के या तो आहार बिना के किए कि नहीं किए. એટલે यानी कि कहने में आता है, ज्ञानी भगवान कहते हैं आज हमको जो भी सामग्री मिली उसमें यदि पैसा, उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, प्रतिष्ठा में गड़बड़ हो जाए, कोई भी सामग्री उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो मन की स्वस्थता बनी रहती है, पर आहार में कुछ गड़बड़ हो जाए ना, आहार का त्याग हो जाए या तो आहार में कोई नियंत्रण लेना पड़े तो आत्मा को बहुत अस्वस्थता होती है. ज्ञानी भगवान तो यही कारण बताया, क्योंकि शरीर के साथ आहार लगा हुआ है, वो अनादिकाल का संस्कार है, वो जब भी छूटता है तभी मन एकदम अस्वस्थ हो जाता है. कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, वो चेकअप करवाता है और ना डॉक्टर उसको गोलियां वगैरह देता है, और जब गोली वगैरह लेता है तब व्यक्ति कहता है अभी खाने में क्या लेना, क्या पूछता है, खाने में क्या लेना, अभी तो खाना छोड़ना है, आपने खाने में कुछ गड़बड़ की है, इसके लिए आपको ये अस्वस्थता आई है, बीमारी आई है. और जब भी बोले डॉक्टर कि आपको है ना 1 महीने तक आपको है ना मूंग के पानी में रहना पड़ेगा, तब क्या होता है? बोलो डॉक्टर कौन से अच्छे लगते हैं? डॉक्टर ऐसे बोले मैं आपको ना ये गोलियां देता हूँ, आप गोलियां लेते रहो और आप खाने में कुछ भी छोड़ना नहीं है, रसगुल्ला भी खा सकते हो, गुलाब जामुन भी खा सकते हो, जो आपको मन चाहे आपको खाना खा सकते हो. और दूसरा डॉक्टर कहता है कि आपको ना गोली लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ना जो शरीर लिख के देता हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 1 महीने तक आपको ना वो मूंग का पानी है ना वो लेना पड़ेगा, मूंग के पानी में रहो 1 महीना और आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे. बोलो आपको कौन सी ओपिनियन, कौन सी डॉक्टर की सलाह अच्छी लगेगी? पहले वाले या दूसरे वाले? गुलाब जामुन वाले. मोतिया खाते रहो और आगे बढ़ते रहो. यही बताते हैं कि भाई आहार में कुछ कम ज्यादा हो जाए तो हमको पसंद नहीं होता है, हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है. खरेखर आज जगुमता करने जैसी है. एक टाइम का भी, एक कवल भी थोड़ा सा पेट खाली रह जाए ना तो भी अस्वस्थता हो जाती है. भाई थोड़ा कम हो गया, आज शाम का जो चोरिया था वो छूट गया, अंदर से अस्वस्थता हो जाती है. अनुमोदना करने लायक है ये सात्विक जी भगवान ने 31-31 दिन तक एक भी कवल अपने मुख में नहीं लिया. 80 साल के एक व्यक्ति ने अखरोट खाना छोड़ दिया. पीछे से पता चला कि भाई साहब को तो 80 साल में सब दांत निकल गए थे. 40 साल की उम्र में एक भाई ने मिठाइयाँ छोड़ दी. बाद में पता चला कि उसका डायबिटीज 500 रहता था, डॉक्टर ने मना कर दिया. एक व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ दे दिया. बाद में पता चला कि सामने वाले व्यक्ति ने उसकी खोपड़ी के ऊपर AK-47 रखी थी, यदि 1 करोड़ नहीं दोगे तो ये 6 गोली आपके खोपड़ी में डाल दूंगी. अभी बताओ मुझे, ये तीनों तीन में आपने पूछना कि भाई एक व्यक्ति ने 1 करोड़ छोड़ी, दूसरे व्यक्ति ने मिठाइयाँ छोड़ी, तीसरे व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया छोड़ा. बोलो मजबूरी थी या वरदान की थी? मजबूरी. और ये छोड़ने के बाद
जब अखरोट छूटी, मिठाइयाँ छूटी या तो 1 करोड़ रुपये छूटे, उसमें आनंद रहता है या खेद रहता है? खेद रहता है। छोड़ने के समय भी, त्याग करने के समय भी मजबूरी थी, और जब ये छूटा तभी भी आनंद नहीं था, खेद था, इसे छोड़ना पड़ता है। अब ये साध्वी जी भगवान को पूछने में हम पूछेंगे, ये साध्वी जी भगवान ने जो त्याग किया, 31 दिन तक एक भी कवल नहीं लिया, उसमें मजबूरी या मर्दानगी? मर्दानगी से 31 दिन तक एक भी कवल मुझे नहीं लेना है। जो मासक श्रवण की तपस्या शासन में बताई, महावीर परमात्मा ने बताई, वो आराधना मुझे करनी है, मर्दानगी से करनी है। और ये 31 दिन तक उन्होंने जो तपस्या की और इतना छोड़ा, इतना त्याग किया, वो खेद के साथ या आनंद के साथ? आनंद के साथ। दिन प्रतिदिन जितने उपवास बढ़ते जाते हैं और आनंद बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। प्रश्न सवाल होता है, आनंद कैसे बढ़ता है? हमारा पेट भूखा रहे, हम नर्वस हो जाते हैं और इनका तपस्या आगे बढ़ती रहे। वंदन करने आते थे, पुरस्कार लेने आते थे, इतनी प्रसन्नता, हमको भी सवाल आता है, ये क्या मैजिक है, क्या जादू है, क्या करता है ये, कितना आनंद बढ़ जाता है। ये परमात्मा ने बताई हुई ये तपस्या ही है ऐसी। तपस्या करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और आत्मा की मलिनता दूर हो जाती है, आत्मा विशुद्ध बनता है। और जितनी आत्मा की मलिनता दूर होती है, आत्मा विशुद्ध होता है, इतना आनंद बढ़ता जाता है। आप क्या दोगे बैठ उनको? हाँ, नानी याद तो कुछ रहना चाहिए ना। मनोबरा वाले को भी याद करेंगे, ध्यान करते जाएंगे कि मेरा मासक श्रवण था, तभी उन्होंने मुझे ये भेंट दी थी। बराबर है? कोई आपको भेंट देता है, कोई आपको ना कुछ देता है ना, नई चीज देता है तो आपको याद रहता है। अभी ये साध्वी जी भगवान को भी याद रहे, ऐसा आप क्या दोगे? आप वो भी एकदम खुश हो जाए। अभी आप है ना, मैंने ये सवाल आपसे पूछा, आप है ना मुझे घूर के देखते रहोगे, मुझे भी डर लगेगा। इसलिए मैं ना आपको बता देता हूँ कि ना, एक चीज आप दे सकते हो। क्या दे सकते हो पता है? उन्होंने 31 दिन तक, बहुत है ना, इसलिए डरना नहीं है, बहुत बड़ा नहीं बताऊंगा, पर मैं जो भी बताऊंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। और मैं जो भी बोलूंगा और आप स्वीकार करोगे तो मैं बताऊं, स्वीकार करोगे? हाँ भी नहीं बोल सकते हो। मिलने वाला है, साधन में भक्ति है यहाँ पर। हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ। 31 दिन तक उन्होंने जो उपवास किया, एक भी कवल उन्होंने नहीं लिया, और कल उनका पारना होने वाला है। हम उनकी अनुमोदना कुछ करेंगे, उनको कुछ देंगे। 31 दिन तक भूख लगे तब खाना, और खाने बैठो तब पेट भर के कभी नहीं खाना। बराबर है? 31 दिन तक भूख लगे तब खाना। नौका जी के समय आपने 2-3 मोतैया, क्या बोलते हैं मोती भाई, मोतैया खा लिया, और सुबह मोतैया खा लिया, दोपहर को भोजन तैयार हो गया, फिर भी नहीं खाना, क्योंकि भूख लगे तभी मानसर ने कहा है। ये 31 दिन तक ये तपस्या की अनुमोदना, भूख लगे तब खाना, और जब भी आप खाने बैठो तब पूरा पेट भर के नहीं खाना। बोलो इसी हार्ड है। भी आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ आपको, या तो आप है ना मासक श्रवण करके ये अनुमोदना की भेंट हमको दो, या तो ये करो। क्या करना है, क्या करोगे? दोनों में से एक। मासक श्रवण करना है कि नहीं, हमारी शक्ति नहीं है हमारे, तो ये तो कर सकते हो ना। जब भी आप खाने बैठो, ऐसे भी हमारे महावीर परमात्मा ने ये अनशन नाम का जो पहला नाम बताया, दूसरे नंबर पर बताया है उनोदरी। उनोदरी यानी क्या? जब भी आप खाने के लिए बैठो तब थोड़ा कम खाओ। ये उनोदरी नाम का तब करेंगे और सच्ची अनुमोदना करके जाएंगे। आज ऐसे तप धर्म की आराधना और साधना पूछे साध्वी जी भगवान छोटे से 3 साल के संयम पर्याय के अंदर की है। सोचिए तो सही पुनिशा।
करीबन 50 साल की साध्वी जी भगवान की वर्तमान की आयु, और उनके अंदर उन्होंने 31 उपवास तप की आराधना साध्वी जी भगवान ने की। साहिब जी, हम तो 3 बार खाने वाले हैं, और आपको पता नहीं कि शाम को कम पड़ा तो नाइट बाजार खुल गए, और स्विगी और जोमेटो के युग में जी रहे हैं। एक IPL की मैच देखे और भूख लगे तो स्विगी जोमेटो में एक मैसेज करें, 20 मिनट में डिलीवरी घर पे पार्सल हो जाती है। उनके होटल में जाने की भी जरूरत नहीं है, और ऐसे युग में जी रहे हैं। लेकिन आज हम आपके तप की अनुमोदना करने के लिए आए हैं। बस हमारे जीवन के अंदर भी गुरु भगवान आपके ऐसे आशीर्वाद बरसे कि आहार के प्रति हमारी मूर्छा हो। एक बात बताओ, खाने के लिए जीते कि जीने के लिए खाते हैं? बोलो तो सही, हेलो। खाने के लिए जीते कि जीने के लिए? ये जिन शासन की प्रभावना तो देखो, कितना महान जिन शासन है। आए तब की अनुमोदना और जाएंगे वापस साधर्मिक भक्ति का लाभ लेकर। नहीं समझ में? हाँ, आए हैं तब धर्म की अनुमोदना करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ से जब एग्जिट हो गए तो साधर्मिक भक्ति का लाभ लेकर जाएंगे। ये जिन शासन की महानता है। हाँ, हम तो 12 बजे का जैसा ही समय होगा तुरंत जाएंगे, तो वापस कहीं जाने वाले। किसी को एकासन होगा, किसी को बियासन होगा, और कोई मेरे जैसा अगर 3 टाइम खाने वाला भी होगा, लेकिन खाकर ही जाएंगे। देखिए, परमात्मा महादेव के प्रति हमको इतनी करुणा की है। भगवान महादेव ने हमारे पर कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इतनी चिंता इस जगत में किसी ईश्वर ने की है ना, तो केवल और केवल हमारे परमात्मा महावीर स्वामी ने किया। और इतनी चिंता करने वाले भगवान का शासन हमको मिला है। मैं आज तो पूरा विश्वास रखूं कि यहाँ तो मनफरा के लोग हैं, 154 दीक्षा जिस धन्य धरा पर हुई है, और ऐसी पुण्यवंत धरती के जहाँ जिस धरती ने महान जिन शासन के आचार्यों की भेंट दी हुई है। हमारे गुरुदेव कलाप्रभु सूरी महाराजा की अति प्रिय धरती थी। कलाप्रभु सूरी महाराजा ने चातुर्मास किया, भक्ति योगाचार्य जी ने चातुर्मास किया। कैसे कैसे महान सूरी भगवंतों ने जिस धरती पर चातुर्मास किया, ऐसी मनफरा की धरती है। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं होगा कि रात्रि भोजन करता होगा, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जमीन तेल का उपयोग करता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि अभक्ष्य खाता होगा। सही है, इतना तो विश्वास रखूं कि नहीं रखूं? हाँ, सबसे बड़े जीत विजय जी महाराजा की ये धरती, हाँ, जिसकी उज्जवल परंपरा हम सबको मिली। हाँ, बस केवल भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए, भगवान मुझे आँख आ जाए तो ये संसार को छोड़ दूं, और जिनका अंधापा दूर हो गया, ऐसे हमारे जीत विजय जी महाराजा, और उनकी ये पुण्यवंत धरती, और जिस परंपरा में जीत विजय जी महाराजा की उज्जवल परंपरा, जिनके जनक सूरी दादा, देवेंद्र सूरी दादा, कलापुर सूरी दादा, कलाप्रभु सूरी महाराजा, कल्पतरु सूरी महाराजा, तीर्थवत्र सूरी महाराजा जैसे महान सूरी भगवंतों की भेंट जिस परंपरा ने दी, आज ऐसी परंपरा की धरती पर ये श्रवणी भगवंत ने ये उपवास किया है। शायद चेन्नई में किए होते तो इससे 4 गुने लोग होते। सही है ना? हाँ, चेन्नई में किए होते तो 4 गुने लोग होंगे, लेकिन उन्होंने भी चॉइस तो मनफरा की ही की। और आज मनफरा की धरती पर कल पहली बार, सुनिए मनफरा वाले, पहली बार चातुर्मास के लिए पधारने वाले श्रवणी भगवान पूज्य प्रसम कृपा श्रीमान पहली बार मनफरा में तो आए के उन्होंने वापरा ही नहीं। हाँ, तो मनफरा की धरती पे आने के बाद कल पहली बार वो वापरेंगे। हाँ, कौन सद्भागी होगा कि जिनके घर पर पूज्य साध्वी जी भगवान के पगलिए होंगे, और वहां से, क्योंकि साध्वी जी भगवान हमारे सामने तो वापर नहीं सकते, हाँ, लेकिन हाँ, तो उनके घर पे पगलिए होंगे। फिर प्रथम साध्वी जी भगवान को पालना कराने का कोहरा निकला, उनका एक चढ़ावा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। पूरी शरीर परम पूज्य महाराज श्री तीर्थ हेम विजय जी महाराज साहेब, तीर्थ ध्यान विजय जी महाराज साहेब और तीर्थ कल्याण विजय जी महाराज साहेब के चरणों में हमारे सिंघवी परिवार का कोटि कोटि वंदन। हमारे परिवार में से 3 दीक्षा हुई है। बड़े पापा तीर्थ पद्मा विजय जी महाराज साहेब एक ही रात में जिन्होंने निश्चय किया कि मुझे दीक्षा लेनी है, और सुबह उनका सपना साकार भी हो गया। ऐसे मेरे भाई महाराज तीर्थ भुवन विजय जी महाराज साहेब, और आज जिनका 31
उपवास है और हम सब तब की अनुमोदना करने के लिए उपस्थित है। ऐसे मेरे बड़ी मम्मी महाराज प्रसन्न कृपा श्री जी महाराज है। क्या आप सुख साटा में हो? तपस्या का मौसम आया है। कृपा माचा ने मास कमन ठाया है। 10 दिए पर विजय करके जिन शासन का मान बढ़ाया है। वचनों ने वरनारा ये तो भावे तप धरनारा। वचनों ने वरनारा ये तो भावे तप धरनारा। ओ जिन शासन शनगारा तारा सत्वनु जय जयकार। तपस्वी प्यारा तपस्वी मारा शासन तारा तपस्वी मारा। उम्र आपकी छोटी है, तपस्या मोटी है। परिवार की शान है, ये तपस्वी महान है। सबने आपको रोका टोका लेकिन आपने नहीं छोड़ा ये मौका। कोई काम असंभव नहीं। ये चीज आपने सबको दिखाई है, सिखाई है। इतनी छोटी उम्र में बड़ी तपस्या करके दिखाई है। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। तीर्थंकर भगवान को नमन करते हुए यहाँ पर विराजित साधु व साध्वी जी को मेरा वंदन नमन। यहाँ पर अत्र विराजित सभी श्रावक और श्राविकाओं को मेरा प्रणाम। आचार्य तीर्थभद्र सागर जी के आशीर्वाद से व गुरुनिशा के मिश्रा में एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत सजी सज गया जिन शासन का प्रांगण है। जिनमें सितारे सारे करते आपको वंदन है। तपस्यार्थी प्रश्न कुमारी साध्वी जी को मेरा सत सत अभिनंदन है। तपस्या आत्मा में बसे अंतर गुणों की साधना है, आराधना है। तपस्या दुख की तापना लेकर आत्मसुखों की साधना है। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो तपस्या का अमृत का रस पान करते हैं। आत्मा को निर्मल कर चंदन के भांति पावन हो जाते हैं। जिनकी आराधना सच्ची होती है और भाव निर्मल होते हैं, देवगण भी केसर की बरसात करते हैं, तपस्वी की जय जयकार करते हैं। तपस्या को जिन शासन में ऊंचा दर्जा दिया गया है, समकित धार कर कर्मों का तू क्षय कर, कसायों का तू अपनी शक्ति का आभास कर, उदारता का भाव धर। आत्मा का तू कल्याण कर, अपनी सजगता से धर्म का तू विकास कर। अनेक शक्ति तेरे भीतर, तुझ में ही बसा है महावीर। कर रहे हैं देव जय जयकार, तपस्वी को हमारा सत सत नमस्कार। प्रश्न कृपा जी मरासा के अनुमोदन में कुछ पंक्तियां। साधना 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 साधक को साध गए रे। आचार्य व गुरु निशा के चरणों में छान गए हैं। साधना 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 साधना। प्रश्न कृपा जी के 31वीं तपस्या के उपलक्ष्य में मनफरा के श्री श्रृंग को हमारा नमन। चेन्नई से पधारे सभी और की तरफ से आपके प्रयासों को नमन व आपके सुकृत भावों को खूब खूब अनुमोदना। बोलिए श्री जिनशासन देव की। 1,08,000 रुपया 2.25 बार और श्री संघ की अनुज्ञा लेकर 1,08,000 रुपया 3 बार। बोलिए श्री वासुदेव स्वामी भगवान की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। पूज्य साध्वी जी भगवान के संसारी भुआ परिवार, चेन्नई भुआ परिवार, इन्होंने ये लाभ लिया। एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदन करते हुए अनुमोदन
दिन के तब का लास्ट पचकान, कल दूसरा पचकान रहेगा, उपवास का लास्ट पचकान का। बोलो जी शासन देव की जय। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। खुद रत्नवंशी माता है, इनके बेटे ने पोते में दीक्षा ली हुई है। एक बार दोनों हाथ उठा करके अनुमोदन कीजिए। मेरे को पता नहीं था कि उनको मौसम चल रहा है। मैं आई जब 10 पास हो गया था, मेरे को पता नहीं था
मैं तो ऐसे आई थी वंदन करने, और वहाँ गई थी गाड़ी पे, तो उन्होंने बोला कि माँ शायद धरती का मासा तुम कर रहा है वहाँ मरद का, मुझे ऐसी बात है क्या? पर मैंने सुना है शायद मासा मन चल रहा है 10 पास हुए, मगर आप एक काम करना मेरा, उनको मेरे लिए एक चीज़ बोलना कि अगर उनको जब चाहता है, जब तक वो पैदल चल सके बेड़ा कर, और जब पंखा न लगाए और न किसी से कुछ न लगाए तब तक वो करे, और जिस दिन कुछ लगाना पड़े उसी दिन पार ना कर ले। भले मासी तो बड़े 20 पास हो 21 पास हो, मगर उसी दिन पार ना कर ले, ये मेरा बोलना है।
50 मिनट